According to according to Lenz law, the direction of induced current will be always to oppose its cause. जिस भी वजह से EMF इंड्यूस हो रहा है हमेशा उसको अपोज करने के लिए induced current will be there. So next is methods of changing magnetic flux. Magnetic flux change करने के मेथड मतलब EMF इंड्यूस करने के मेथड. Methods of changing magnetic flux with time. Flux change करना है time के respect में. Only when it changes with time, there will be an EMF induced. Flux का फॉर्मूला था B into A into cos theta. अगर फ्लक्स चेंज करना है तो या तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए या फिर एरिया या फिर एंगल चेंज होना चाहिए between them. B changing with time, flux will change. A changing with time, flux will change. Theta changing with time, then also flux will change. First method is by changing magnetic field. So हम एक questions के form में कर लेंगे. अगर magnetic field time के साथ change हो रही है and in that magnetic field some closed loop is present, the flux will change. The flux will change with time and it will induce an EMF with. So concept सेम है हमें हर बार एक फ्लक्स कैलकुलेट करना है फ्लक्स को डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स विल बी इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड अगर वो इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है तो सो सपोज अ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी पीरियोडिकली चेंज हो रही है ऐसी कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक सर्कुलर कॉइल रखा है ऑफ रेडियस कैपिटल आर इन दैट कॉइल फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड क्योंकि ये क्लोज लूप है सो इसके अंदर करंट भी आ सकती है देयर विल बी करंट आल्सो इन दिस लूप बिकॉज इट इज अ क्लोज लूप अगर ओपन लूप होता तो ईएमएफ होता लेकिन करंट नहीं इन अ क्लोज लूप देयर विल ऑलवेज बी एन ईएमएफ that there will always be a current because of EMF. EMF is like a battery or potential. Potential difference है और closed loop है, then there will be resistance also. Current also. Magnetic flux passing through this circular loop. So एक example के through हम इस condition को समझ रहे हैं. Flux change करना, magnetic field change करने से भी हो सकता है, area change करने से भी हो सकता है. So magnetic flux at time t ये एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल के थ्रू सो इट इज बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा थीटा हमने जीरो ले लिया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इस प्लेन का एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ ले सकते हैं बिकॉज दैट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया बी इंटू ए इंटू कॉस जीरो बी बिकम्स बी नॉट साइन ओमेगा टी एरिया इज पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इसका लूप का रेजिस्टेंस है कैपिटल आर resistance of loop is capital R area will be pi r square from this we can calculate EMF induced in the loop will be equal to magnitude wise d phi by dt if we apply the Lenz law to find the direction also it will be minus d phi by dt minus का मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो उसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ माइनस डी फाइव बाई डी टी जो हमने ऊपर फ्लक्स कैलकुलेट किया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वी विल write that function and then we differentiate to find the magnetic flux EMF.
So EMF induced will be minus of d phi by dt. When we differentiate, sin omega t differentiation will become cos omega t into omega. So differentiate this function to calculate the flux EMF. माइनस डायरेक्शन के लिए है बी नॉट कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, चेन रूल से दोबारा करेंगे तो एक ओमेगा और आ जाएगा, बी नॉट पाई आर स्क्वायर ओमेगा इनटू कॉस ओमेगा टी. दिस इज द ईएमएफ माइनस साइन डायरेक्शन के लिए. So similarly, in any loop, if it is kept in a magnetic field which is changing with time, we can find out the flux as a function of time. Flux को differentiate करके EMF. ये EMF है. EMF का मतलब like a potential current in the loop at any time t. So that will be E by R. Current will be EMF induced divided by resistance B naught pi R square omega divided by capital R times cos of omega, where capital R is the resistance of the loop. So every current carrying loop, every closed loop kept in a magnetic field, टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर एक करंट आ जाएगी और उसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा. कैसे हो रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर इट, दैट वी विल अंडरस्टैंड लेटर. व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट. बिना किसी एक्सटर्नल बैटरी के देयर इज अ करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड को बस टाइम के साथ चेंज करके आगे. मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम. किसी भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टिंग लूप रखने पे उसके अंदर ईएमएफ डेवलप हो जाता है और उसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाती है व्हिच इज डिफाइंड एज इंडक्शन. सेकंड, बाय चेंजिंग द एरिया. अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो बट हम एरिया चेंज करते जाएं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद टाइम, देन आल्सो देयर विल बी एन ईएमएफ इंड्यूस्ड. फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो, एरिया की वजह से हो, एंगल की वजह से हो, या इनमें से किसी भी के भी कॉम्बिनेशन से. दोनों चीजें भी एक साथ चेंज हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो और एरिया भी चेंज हो. फ्लक्स चेंजिंग विद टाइम विल इंड्यूस एन ईएमएफ. पहले फ्लक्स निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t एंड देन वी हैव टू डिफरेंशिएट टू कैलकुलेट द ईएमएफ. अगर वो क्लोज लूप है तो उसमें करंट भी आ जाएगी. करंट विल बी ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. What is the source of this EMF, that we will try to understand at the last of this chapter, at the end of this chapter. कि मैग्नेटिक फील्ड बदलने से करंट कैसे आ गई. There is another concept of induced electric field. Second method, by changing area with time. अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप को रखें और लूप का एरिया चेंज कर देते हैं by changing area with time. If area is changing with time, it also induces an EMF because there will be change in magnetic flux with time. Example, suppose constant magnetic field है into the plane और इसके अंदर एक flexible wire का loop रखा हुआ है. Now magnetic field is constant. This is a uniform magnetic field. It is not changing with time. In this magnetic field, if a flexible wire whose radius is linearly increasing with the time, R is equal to R naught plus alpha t. This is radius is increasing linearly somehow. कैसे वो पता नहीं. somehow अगर इसका साइज अपने आप बड़ा होने लगे, then या हम इसको पकड़ के बाहर पुल कर रहे हैं,
then we have to find the EMF induced at any time t by applying the Faraday's law. फील्ड कांस्टेंट है बट इट इज, पहले इसमें अगर हम लेंज लॉ लगाते हैं रुद्रांश, बाय यूजिंग लेंज लॉ इसमें करंट की डायरेक्शन किधर होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? रुद्रांश सर पता नहीं वेरी राइट। लास्ट क्लास में कुछ किया था हमने, लेंज लॉ, जिस भी रीजन से फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको अपोज करने के लिए करंट आएगी। इसमें एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है रुद्रांश? यस सर। एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। यस सर। और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट उसको कम करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है सर? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज नहीं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर है रुद्रांश? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर क्रॉस। सो इंड्यूस करंट को उसके अपोजिट प्रोड्यूस करना है, यानी बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट? सो अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो वो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने से रोक रहा है। सो करंट की डायरेक्शन तो हमने पहले ही डिसाइड कर ली बाय यूजिंग लेंज लॉ, दैट करंट शुड बी और ईएमएफ शुड बी, करंट की डायरेक्शन और ईएमएफ की डायरेक्शन सेम होती है, इट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें बताना है कि वो ईएमएफ कितना है और वो करंट कितनी है एट एनी टाइम टी बाय यूजिंग द फैराडेज लॉ। फ्लक्स एट टाइम टी, तो हम एग्जाम्पल के फॉर्म में कर रहे हैं बिकॉज कॉन्सेप्ट तो लेंज लॉ ही अप्लाई करना है। फ्लक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ईएमएफ मिल जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम टी फाई विल बी इक्वल टू V naught into pi r square, where r is changing with time, increasing with time. Right? Theta तो 0 है तो cos 0 will be 1, cos 0 will be 1. EMF magnitude, EMF induced in this loop at any time t will be integration of, differentiation of d phi by dt. क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, डायरेक्शन हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं बाय अप्लाइंग द लेंज लॉ। पिछले वाले में डायरेक्शन क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो साइनोसॉइडल फंक्शन था, मतलब पहले क्लॉक फिर एंटी क्लॉकवाइज। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो रही थी इन द प्रीवियस एग्जांपल व्हेन b is equal to b naught omega sin omega t. So here d by dt of b naught into pi r square, b naught कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ r स्क्वायर। सक्षम r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है t के रिस्पेक्ट में? सक्षम डिफरेंशिएशन ऑफ r स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t। सक्षम क्लास में आ गए। ध्रुव, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ r स्क्वायर? r तो तब होता है जब वो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे। ये तो t है ना, d by dx of x square is 2x। चेन रूल लगाना पड़ेगा सर। 2r 2r तो होता अगर हम डिफरेंशिएशन भी उसी वेरिएबल में करते जिस वेरिएबल का फंक्शन है, बट यहाँ पे नीचे r नहीं ना, दिस इज dt। इसको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, dr से मल्टीप्लाई और dr से डिवाइड। तो r स्क्वायर का dr के रिस्पेक्ट में आ गया 2r, इट विल बी 2r इंटू dr बाई dt, 2 into r times dr by dt by using the chain rule.
आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में 2r होता, टी के रेस्पेक्ट में नहीं। टी के लिए हमें उसमें चेन रूल के लिए dr से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके व्योम, व्हाट इज द फाइनल आंसर? अब हम यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दें, आर नॉट प्लस अल्फा डी, और उसको डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फा और आ गया 2 अल्फा पाई बी नॉट इंटू आर नॉट प्लस अल्फा डी। अगर रेडियस टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज हो रही है तो इसमें भी बस एक कांस्टेंट और आ गया मल्टीप्लाई में। सो द ईएमएफ विल आल्सो इंक्रीज लीनियरली विद टाइम, ओनली द स्लोप विल चेंज। अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेडियस अगर लीनियरली इंक्रीज हो रही है तो उस लूप के अंदर ईएमएफ भी लीनियरली इंक्रीज होगा, करंट विल आल्सो लीनियरली इंक्रीज, राइट? If radius is increasing linearly with time, then EMF will also increase linearly with time, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया था इन दी जेई। रेडियस का टाइम के साथ अगर ग्राफ गिवन है, ड्रॉ द करेस्पॉन्डिंग EMF ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस इज लीनियरली इंक्रीजिंग, radius is started with r naught, it is increasing linearly। इसका करेस्पॉन्डिंग ईएमएफ ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन जब वो रेडियस लीनियरली इंक्रीज हो रही है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी द ईएमएफ ग्राफ? सेम स्लोप, सॉरी सेम शेप, स्लोप डिफरेंट हो गई केवल। मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड if there is a loop, this radius is increasing linearly। इस पर अगर हम e नॉट assume कर ले तो वो भी linearly increase हो रहा है with slightly greater slope, केवल slope में थोड़ा सा increase हुआ है, multiplied with 2 alpha by beta naught b naught। On increasing the radius linearly, flux EMF also increases linearly। Current calculate करेंगे, I is equal to E by R, so current will also increase linearly only। yes। अगर हम एरिया चेंज करते हैं लीनियरली, इसका जो जेई में क्वेश्चन आया था, फॉर द करेस्पॉन्डिंग रेडियस वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ द ईएमएफ ग्राफ। इन अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एक लूप रखा हुआ है एंड द लूप रेडियस इज चेंजिंग विद टाइम एज शोन। रेडियस इज, दिस इज अनदर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का हम रिजल्ट यूज करेंगे। रेडियस इज इंक्रीजिंग लीनियरली, देन कांस्टेंट, देन लीनियर। If this is a radius versus time graph for the situation shown in the diagram, draw the corresponding EMF induced as a function of time। Draw the corresponding EMF induced as a function of time।
0 to T1, radius is linearly increasing, same as the previous question. EMF will also be linearly increasing. What about T1 to T2? ग्राफ मतलब जैसा वो ऐसा ही. Let's see. What about T1 to T2? Krish, T1 से T2 में what will be the EMF induced graph? What is the EMF induced graph from T1 to T2, Krish? T1 to T2 में रेडियस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? सर डिक्रीज हो रही है. बट T1 to T2 में कैसे डिक्रीज हो रही है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वो. रेडियस 0 से T1 तक इंक्रीज हुई थी, फिर T1 से T2 तक वो पैरेलल है. पैरेलल का मतलब कांस्टेंट. इट इज कांस्टेंट विद टाइम. ये ग्राफ देख रहे हो ना जो मैंने बोर्ड पे बनाया, दूसरा देख रहे हो? सर दूसरा देख रहा था. ओके. 0 से T1 में रेडियस इंक्रीज हो रही है, T1 से T2 में कांस्टेंट है, T2 to T3 फिर से इंक्रीज हो रही है. So what about T1 to T2? फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? क्रिश, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रॉम T1 to T2? क्रिश, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और कांस्टेंट? सर कांस्टेंट है. कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड एनीवे कांस्टेंट. अगर फ्लक्स कांस्टेंट रहता है तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो बिकॉज d5 by dt. फ्लक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो. फिर से इंक्रीज हो रही है, अब फिर से, लेकिन यहां से ऐसे बनाएंगे या यहां से बनाएंगे? दैट इज द क्वेश्चन. व्हाट शुड बी द ग्राफ? वेयर शुड इट स्टार्ट? इज दिस करेक्ट या फिर पहले वाला करेक्ट था? व्योम, व्योम, यस सर. क्या हो गया? साइलेंट मोड में हो आज? नहीं सर. और कर रहे हो, कहीं और बिजी हो? नहीं सर. मल्टीटास्किंग ऑनलाइन तो हो जाती है, मल्टीटास्किंग मैं भी करता रहता हूँ क्लास के साथ साथ. ये नीचे वाला सही है, ऊपर वाला सही है? कौन सा सही है? एक्सप्लेन रीजन, गिव द रीजन आल्सो. ये तो हमें पता है, रेडियस लीनियरली, तो ईएमएफ लीनियरली 0 से स्टार्ट होगा या ऊपर से स्टार्ट होगा? कौन सा वाला करेक्ट है और क्यों? सोच के बताना है. पहले करेक्ट कौन सा है ये बताओ. विच वन इज करेक्ट? विच वन सीम्स करेक्ट? सर शायद सेकंड वाला. शायद सेकंड वाला. पहले वाले में क्या गड़बड़ है? जेई 2010 का क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव. यस, क्या गड़बड़ है सेकंड वाले में? सर क्योंकि T1 से T2 तक कांस्टेंट था, तो वहीं से शुरू होगा ना फिर. वहीं शुरू होगा. वो उससे इसका क्या लेना देना, वो तो अलग है. यस, नव्या, नीति, एनीवन? लीनियर तो ये भी है, लीनियर तो ये भी है. लीनियर में तो पंगा ही नहीं है, तो वो था लीनियर. क्रिश, क्रिश, क्या गायब हो गए क्या? तो सर शायद पहला वाला. कुछ
पहला वाला होगा, सही बोला आप। क्यों? सर क्योंकि रेट 0 हो गया था और फिर वापस जब बढ़ना शुरू हुआ रेडियस। बोलते जाओ। ये आया था रिलेशन, सर है ना? फॉर्मूला p इंटू पाई नॉट पाई आर स्क्वायर, जब डिफरेंशिएट किया था तो r इंटू डी आर बाई डी टी, यानी वो इस पर डिपेंड करता है कि रेडियस कितनी है और इस बात पर डिपेंड करता है कि रेडियस का रेट ऑफ चेंज कितना है, दोनों का प्रोडक्ट। जीरो पे जीरो से इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि वहां पे रेडियस जीरो थी, इसलिए दिस इज जीरो, आर जीरो, तो ये टोटल हो गया जीरो। डी आर बाई डी टी इज नॉट जीरो इनिशियली एट 0 to t1 ऑल्सो देयर इज अ डी आर बाई डी टी इज पॉजिटिव कांस्टेंट। सेकेंड वाले टर्म में t1 से t2 में डी आर बाई डी टी जीरो हो गया, रेट ऑफ चेंज जीरो, इसलिए वो जीरो हो गया। अब तीसरे वाले में हमने देखना है, जैसे हम t2 पे आएंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस होल टर्म। t2 से आगे जाओगे, इज r जीरो? नो। इज डी आर बाई डी टी जीरो? नो। दोनों पॉजिटिव है, r की वैल्यू भी पॉजिटिव है और डी आर बाई डी टी इज ऑल्सो पॉजिटिव। So positive into positive means it will start from some positive value. It will not start from zero. तो मैथमेटिक्स को ही बस जब ग्राफ में इम्प्लीमेंट करना होता है तो वो कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। पिछला क्वेश्चन जो किया था हमने वो एस एल अरोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, दैट इज देयर इन एस एल अरोड़ा एज वेल। आर इंटू डी आर बाई डी टी के प्रोपोर्शनल है, यानी उस पॉइंट पे रेडियस और उस पॉइंट पे रेडियस के रेट ऑफ चेंज दोनों की प्रोपोर्शनल है। अंडरस्टूड? यस। राइट। सो सेकेंड मेथड हो गया मैग्नेटिक फील्ड चेंज, फ्लक्स चेंज करना बाय चेंजिंग द एरिया। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, वन स्पेसिफिक एग्जांपल, जिससे हम लेंज लॉ भी प्रूव कर लेते हैं, दैट लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नीति, सेकेंड वाला केस बाय चेंजिंग एरिया, उसी में एक स्पेसिफिक केस आता है मोशनल ईएमएफ, जब because of the motion of some part of the conductor or some part of the loop there is an EMF induced, then it is called motional EMF. मोशनल मतलब मोशन की वजह से EMF इंड्यूस हो रहा हो। So, this is a fixed wire frame having zero resistance, negligible resistance. ये एक वायर फ्रेम है यू शेप का, फिक्स्ड वायर फ्रेम ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। So if resistance is negligible और ये रखा हुआ है किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, देयर इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन। Sir, I got disconnected. If you called me. नीति, Yes, sir.
ओके, मैं कल से आपको पूछ रहा था, आप कल भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे थे। समझ में आ रहा है कुछ? कल कल की क्लास में प्रेजेंट नहीं थे? नहीं, बीच में चेक किया था मैंने, शुरू में ज्वाइन किया था आपने? नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। No sir, actually आज मेरा मैथ एग्जाम था, इस वजह से कल एंड अभी हुआ था डिस्कनेक्ट हुई। हाँ, अभी भी शायद कुछ इशू है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके, if you miss a class you have to attend the video lectures and ताकि next class का समझ में आए। आ रहा है, अच्छी बात है। Dishita, you are also not there in the last class. Dishita? वेरी गुड। एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है B, उस मैग्नेटिक फील्ड में फिक्स वायर फ्रेम है जिसके बीच की सेपरेशन है L, एंड देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ L PQ which moves with velocity V, रॉड PQ ऑफ लेंथ L और इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल R, it moves on the frame without friction. Resistance R moves on the frame without friction. With velocity V. So अगर हम इस रॉड को V वेलोसिटी से मूव करते हैं, रॉड का और इस फ्रेम के साथ जो बीच में लूप बन रहा है उसका एरिया टाइम के साथ इंक्रीज होता जाएगा। इफ this area is increasing means flux is increasing, flux is increasing, then there will be an EMF induced in this loop which is called motional EMF, क्योंकि ये मोशन की वजह से आ रहा है। At any time t, suppose rod PQ is x distance from the fixed end, जैसे जैसे रॉड को मूव करेंगे एरिया ऑफ दिस लूप विल इंक्रीज, एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और उस ईएमएफ इंड्यूस या करंट की डायरेक्शन भी हम लेंज लॉ से पता कर सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, सो कम करने के लिए अपोजिट फील्ड आनी चाहिए। अपोजिट फील्ड होगी जब करंट एंटी क्लॉकवाइज हो। तो करंट को तो हम अलग से डिसाइड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ लेंज लॉ। अभी हमें इस लूप के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द मोशन वो कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t is equal to B into area, area is L into X times cos 0, BLX magnitude wise, EMF induced will be d phi by dt, मैग्नीट्यूड वाइज केवल हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन तो हम पहले ही लेंज लॉ से डिसाइड कर चुके हैं, इट इज गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी, BL into X, B constant, L constant, dx by dt will become V. So EMF induced is BL into V in this rod. अब in this loop, वैसे तो EMF induced हम बोलेंगे किसमें? In the loop. बट एक्चुअल में किसमें इंड्यूस हो रहा है ये? ओनली इन दी रॉड। जैसे वी यूज दी लॉजिक, अगर लूप क्लोज ना हो तो भी ईएमएफ होता है, करंट नहीं। तो अगर ये नीचे का वायर फ्रेम हम हटा दें, द होल वायर फ्रेम इज गॉन, ओनली रॉड इज मूविंग इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो उस रॉड के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम एज BL into V। तो ये जो EMF इंड्यूस हो रहा है ये इसी एक लूप में नहीं है, दिस इज इन दिस रॉड, द रॉड PQ, कंडक्टिंग रॉड जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है इट हैज एन EMF डेवलप्ड और उस EMF को हम बोलते हैं मोशनल EMF। सर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ गया? अबे उसी पोटेंशियल डिफरेंस को तो EMF बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस था थोड़ी। EMF इज पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा भूल गए क्या रुद्रांश? नहीं सर, बोला नहीं।
EMF पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है. Yes, sir. Potential difference between the terminals of a cell when there is no current, when cell is not in use. And sir, open circuit. Open circuit. तो ये जब रॉड है, ओनली रॉड, नॉट द फ्रेम, और जब रॉड को भी मूव करें तो भी इसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हो जाएगा वो भी सेम होगा, और उसको हम भी बोलेंगे मोशनल ईएमएफ. जब तक वो रॉड रेस्ट में है, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल. जब उस रॉड को हम मूव करेंगे तो उसके लेंथ के अक्रॉस मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा. BLV, हाँ, dx by dt is velocity, so B into L into V. EMF induced in this moving rod. EMF का मतलब इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, and that potential difference is B into L into V. Now that potential difference acts as a source of EMF. Source of EMF क्या होता है किसी भी सर्किट के लिए? Usually what is the source of EMF? सेल और बैटरी. तो इस सर्किट में जो भी करंट है वो किसी बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी की वजह से नहीं है, वो सिर्फ इस रॉड PQ की वजह से है. एंटी क्लॉकवाइज करंट होनी चाहिए क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है, सो दैट मींस दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट. इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट आ जाएगी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. राइट. एंटी क्लॉकवाइज करंट आनी चाहिए क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है, कम करने के लिए अपोजिट फील्ड यानी आउट ऑफ द प्लेन फील्ड, आउट ऑफ द प्लेन फील्ड के लिए करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज. अब हमने EMF तो निकाल लिया. मेरा क्वेश्चन ये है कि ये VP माइनस VQ है या VQ माइनस VP, मतलब दोनों में कौन सा वाला हाई पोटेंशियल है. फ्रॉम दिस डायग्राम करंट इज गोइंग फ्रॉम Q टू P. कौन सा हाई पोटेंशियल है, P पे या Q पे? सर Q है. Q हाई पोटेंशियल पर है. क्यों सर? क्योंकि हाई टू लो फ्लो करता है ना. क्योंकि सर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है ना. तो क्या, फिर से बोला, क्या बोला? P इज हाई पोटेंशियल. ख्याल का लॉजिक भी होना चाहिए, ख्याल से काम नहीं चलेगा. Okay, so Drash, according to you, Q is at higher potential, and according to क्यों? करंट तो Q से P की तरफ जा रही है ना. सर Q ज्यादा हाई पोटेंशियल है ना, उसी से जाएगा. हाई टू लो जाता है. व्योम, फिश, हेल्प. P हाई पोटेंशियल पर है, Q हाई पोटेंशियल पर. सर P और होना Q P होना चाहिए. क्यों? Why? सर क्योंकि उसका L ज्यादा, L जो है Q का 0 है, तो उसका L जो है वो ऊपर L है. तो पूरे का ही है यार, इस पूरे का L है. L किसी एक पॉइंट का थोड़ी है. L इज द लेंथ. करंट Q से P की तरफ जा रही है, ये तो दिख ही रहा है सर्किट में. अब Q हाई पोटेंशियल पर है, P हाई पोटेंशियल पर है, दैट्स द क्वेश्चन. सर Q होगा. व्योम, ध्रुव, P और Q में कौन सा हाई पोटेंशियल पर है और क्यों? ध्रुव, जी सर. P और Q में हाई पोटेंशियल में कौन सा? देखो, विद द ऑर्डिनरी लॉजिक करंट गोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ऐसा लगेगा कि Q इज ग्रेटर देन P, ऐसा लग सकता है. अब हम ये देखते हैं कि ये जो हम स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, दैट करंट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं. कोई सर्किट देखते हैं. ये सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टर है R, और इसमें एक हमने लगाया है बैटरी ऑफ EMF E. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना द्रंश? यस सर. अब यही बोल रहे हो हाई से लो की तरफ. यस सर. अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे यहाँ बैटरी है, इन द एक्सटर्नल सर्किट इट इज गोइंग फ्रॉम हाई टू लो, और सेल के अंदर करंट किधर से आ रही है? लो टू हाई. द डायरेक्शन ऑफ करंट in external circuit is from high potential to low potential. In this cell it is from
नेगेटिव टू पॉजिटिव, तब जाके ये सर्किट कंप्लीट होता है एंड द करंट कीप्स ऑन फ्लोइंग इनटू दिस सर्किट. डायरेक्शन ऑफ करंट in any circuit in any cell is from low potential to high potential, और उसी को हम डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं. यहाँ पर और कोई बैटरी है नहीं. दिस PQ इज लाइक ए बैटरी. जैसे ये मूव करना स्टार्ट करती है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डेवलप हो जाता है एंड दैट पोटेंशियल इज एक्टिंग एज ए ईएमएफ ऑफ अ सेल, और सेल में करंट होती है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ. सो दिस इज Vp माइनस VQ, यानी P हाई पोटेंशियल पर है. रुद्रांश, सर ये तो उल्टा हो गया. मजा नहीं है. हाँ मतलब उल्टा हो गया. तो उल्टा तो नीचे सर्किट में भी दिख रहा है ना. जो सेल और बैटरी वाला सर्किट है, सेल और रेजिस्टेंस वाला, कैपिटल R में जो बाहर सर्किट है रेजिस्टेंस, उसमें तो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रही है, और सेल के अंदर करंट होती है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. राइट? यस सर. सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है ना करंट. यस सर. अब इस सर्किट में सेल तो कोई था नहीं, PQ ही है जो सेल की तरह काम कर रहा है. उसमें करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी. गॉट इट? यस सर. अब अगर अभी भी सपोज हजम नहीं हुआ या मजा नहीं आई, तो हम इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं. जैसे विच इज अगर कोई भी कंडक्टिंग रॉड है, मूव कर रही हो, दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट कॉजेज द ईएमएफ इंड्यूस्ड. अगर कोई कंडक्टर मूव करे मैग्नेटिक फील्ड में, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री स्टेट में, फ्री इलेक्ट्रॉन. जब ये रॉड मूव करेगा तो इसके साथ के इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे. इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल. When a charged particle moves in magnetic field, it experiences a force given by Q VB sin theta. इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है. What is the direction of force on that electron? Use the Fleming's left hand rule. Find the direction of force on the electron. Q VB पहले मैग्नेटिक फील्ड, इसको वेलोसिटी की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की तरफ. ये नेगेटिव है तो इसको घुमा देंगे अपोजिट, हम आएगा नीचे की तरफ. इलेक्ट्रॉन जितने भी है उन पे नीचे की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. सो इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नीचे वाले एंड पे एक्यूमुलेट होते जाएंगे. ऊपर की तरफ से इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी. सो दैट विल बिकम एट हायर पोटेंशियल. डायरेक्शन फिर से Q VB sin थीटा, FBI मैग्नेटिक फील्ड अंदर है. ये होती थी वेलोसिटी लेकिन पॉजिटिव चार्ज की, क्योंकि करंट की डायरेक्शन होती है. अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इधर रखते हैं, ये नेगेटिव के अपोजिट करंट होती है. सो थंब इज गोइंग डाउनवर्ड्स, इसलिए इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है. और इस रॉड PQ में इलेक्ट्रॉन्स Q की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे. सो Q विल हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन नेगेटिवली चार्ज, सेकेंडरी चार्ज मींस लो पोटेंशियल. ये क्लियर? यस बेटा, ये लॉजिक ये समझ में आया? इलेक्ट्रॉन नीचे क्यों जा रहे हैं? सक्षम? सर इलेक्ट्रॉन वाला दोबारा बता दो. रॉड कंडक्टिंग रॉड है. कंडक्टिंग रॉड मूव कर रही है v वेलोसिटी से. रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं मतलब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, कंडक्टर के साथ उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. मूविंग चार्ज पे फोर्स लगता है Q VB sin थीटा. मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी राइट में नेगेटिव चार्ज किया है तो उसको अपोजिट कर लेंगे. हम आएगा नीचे की तरफ. जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा. इलेक्ट्रॉन सारे नीचे की तरफ भागने लगेंगे. Q वाले साइड पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. नेगेटिव चार्ज का मतलब दैट विल कम एट लो पोटेंशियल. ऊपर की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स कम होने लग गए, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई. इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी विल बी लाइक अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल. अभी जो P और Q है इसके बीच में P पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, Q पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए. जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे वो नेगेटिव चार्ज जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे मूव कर जाएंगे वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा.
So when this rod moves, P will be at higher potential, Q will come at lower potential. Because of that, Vp minus Vq will become BLV. Right? Yes. अब लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर सारे नीचे चले जाएंगे खत्म हो जाएगा, फिर तो कंडक्टर के अंदर कोई करंट ही फ्लो नहीं होगी। अगर सारे इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए तो फिर इलेक्ट्रॉन करंट कौन से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगी? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक टाइम के बाद रुक जाएगा। क्यों रुकेगा ये आपको सोच के बता रहा है। व्हाट विल कॉज दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो टू स्टॉप? अगर चलते ही जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो इन्फिनिटी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस इज ओनली BLV मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन जो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, उस टाइम बाद वो रुक जाएंगे। और क्यों रुकेंगे ये हमें सोचना है। व्हाट विल बी दैट रीजन व्हाई इलेक्ट्रॉन फ्लो विल स्टॉप? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जा रहे थे। मैग्नेटिक फील्ड, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो फोर्स लगाया। दिस इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। जब तक मैग्नेटिक फील्ड है तब तक उसमें फोर्स लगेगा, तब तक सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे। और अगर सारे चले जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इट विल नेवर स्टॉप। Why electron has stopped at certain value of potential by not going further? Reason is try तो करो व्योम। यस सर। इलेक्ट्रॉन नीचे जाना क्यों रुक जाएंगे कुछ टाइम के बाद? सर कर्नल्स की वजह से। किसकी वजह से? केमिस्ट्री में चलता है रुद्रांश, दैट इज इन केमिस्ट्री। कोई भी तीर कहीं भी छोड़ सकते हो, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो बेटा वो उसकी वजह से जो आप कह रहे हो उसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। इलेक्ट्रॉन कर्नल में रहते हैं। कर्नल मतलब एक छोटा सा ऑर्बिटल नहीं होता, दी होल कंडक्टर, होल मेटल इज अ कर्नल। क्योंकि सारे ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करके एक बड़ा सा, हाँ थोड़ा फिजिक्स के वाइज सोचना है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज सोचना है, केमिस्ट्री वाला नहीं। फोर्स का कुछ एक्सप्लेनेशन है। नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो रुक जाएगा चलना। अभी नीचे जा रहा था बिकॉज ऑफ अ फोर्स। व्हाई विल देयर बी नेट फोर्स 0? ये मैग्नेटिक फोर्स कौन बैलेंस करेगा? दैट इज द हिंट। सर वेलोसिटी। प्रूफ? हाँ बेटा। सर वेलोसिटी। वेलोसिटी फोर्स थोड़ी है, मैं पूछा फोर्स। वेलोसिटी की वजह से फोर्स है, और वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, हम पकड़ के लेते ही जा रहे हैं, इसको मूव करते जा रहे हैं। रॉड इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कभी 0 तो होगी नहीं। वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब जाके तो ईएमएफ भी 0 हो जाएगा बिकॉज BLV इज आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी। ओके हिंट। पी पे पोटेंशियल कितना है? हाई हो गया लो हो गया? हाई। क्यू का पोटेंशियल, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो उस रीजन में एक क्या डेवलप हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पी से क्यू की तरफ जैसे ये चार्जेस मूव करना स्टार्ट करेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो अप्लाई फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अपोजिट लगेगा टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इस रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। और जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, FE इज इक्वल टू FM, QE इज इक्वल टू QVB, देन द इलेक्ट्रॉन फ्लो विल स्टॉप। जितने इलेक्ट्रॉन जा सकते थे मैक्सिमम वो जा चुके हैं ऑलरेडी, एंड दिस विल डिसाइड how much is the potential difference or EMF induced in the rod. Magnetic force velocity सारे कॉन्सेप्ट हैं। हाँ बेटा। सर एक अकेली रॉड पे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। यही तो फिर इसकी ब्यूटी है, तभी तो सब समझना पड़ता है।
ऐसा नहीं कर सकते 3 चैप्टर तक सो रहे थे, 5वीं में जग गए, अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स, समझ में आ जाएगी? नो वे। इट्स ऑल इंटर रिलेटेड एंड इट्स ऑल कंसेप्चुअल। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गए, क्यू में भी साइन थीटा भी आ गया, सेल भी आ गया, अभी आगे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा, पावर भी आएगा, इलेक्ट्रिकल पावर भी आएगा, और 11th का मैकेनिकल पावर भी आएगा इसी एक एग्जाम्पल में। तो अच्छा, सर ये प्रीवियस सारे चैप्टर पे डिपेंडेंट है। वही तो कह रहा हूँ, तभी कुछ सोच के सीक्वेंस में चैप्टर डिसाइड किया गया। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ो, चार्ज पढ़ो, करंट पढ़ो, फिर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ो, फिर मैग्नेटिज्म पढ़ो, और फिर इंडक्शन पे आता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल है लाइट। देन वी विल जंप टू लाइट रे ऑप्टिक्स। ठीक है, सो थोड़ी सी टाइमलाइन इस बार की शिफ्ट हुई है बिकॉज ऑफ द बोर्ड आल्सो चेंज टू 2 सेमेस्टर, है ना? सो दैट इज व्हाई हम अभी कोर्स खत्म करने पे उतना फोकस नहीं करेंगे। पहले टर्म 1 को बहुत अच्छे से इंक्लूडिंग दी जेई एंड कंप्यूटर लेवल, और टर्म 2 हम स्टार्ट कर लेंगे आफ्टर फिनिशिंग द टर्म 1। वी विल नॉट वेट फॉर द एग्जाम। एग्जाम ड्यूरेशन में आपको मिल जाएगी छुट्टी। अभी डेट शीट नहीं आई है वैसे, बट होपफुली इट विल बी। क्या था इस बार 4 अटेम्प्ट्स हैं। हाँ बेटा, सर चेक किया था, इस बार 4 अटेम्प्ट्स हैं। जेई के यस सर। सर कहाँ फेब्रुवरी चेक कर में, लिया? सर गूगल पे ही। सर फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल में, सर चारों में है, लास्ट वीक में। इस बार का था, नेक्स्ट बार का तो अभी कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया चार्डी मिनिस्ट्री या फिर आईआईटी की तरफ से, डोंट बिलीव। लोग से स्पेकुलेट कर रहे हैं कि तीसरी वेव फिर से आएगी और आ रही है। कुछ लोग तो इनविटेशन भी भेज चुके हैं थर्ड वेव का। कुछ अजीब सा लॉजिक था लोगों का, गर्मियों में अभी जैसे विंटर्स आएगी दिसंबर में फिर आ जाएगी। आई डोंट नो, 6 महीने के बीच में जाती है फिर आती है, फिर जाती है फिर आती है। हाँ हाँ हाँ, पिछले साल भी ऐसे हुआ, जो भी है। बट लोगों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए, लोग यहाँ पे इनविटेशन लेके बैठे हुए हैं। हाँ तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। वो ऐसा नेसेसरी नहीं है बेटे। आप ये मान के चलो कि 2 तो मिनिमम जो रहते थे वो रहेंगे, बाकी डिपेंड करता है कोविड की सिचुएशन पे। बिकॉज इट इज वेरी हाईली अनफेयर कि मेडिकल वालों को सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलता है। आज उनका पेपर है नीट 2021 का, और जेई वालों को 4 बार अपनी गलतियां सुधारने, धोने, पोछने का मौका मिलता है। सर Which एडवांस should- भी 2 बार होना चाहिए। तो हर पेपर 2 बार होना चाहिए ऐसे तो। फर्स्ट का भी 2 बार होना चाहिए, स्कूल भी एक बार फेल हो गया दोबारा देना चाहिए। क्यों 2 बार क्यों होना चाहिए? वाई इवन जेई शुड नॉट बी 2 टाइम्स? लॉजिक क्या है इसका? वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है, ह्यूमन पावर एंड रिसोर्स का वेस्टेज, और कुछ नहीं है। सर बच्चे पहले भी वाले करते हैं यार। वो दूसरे में सुधार सकते हैं। तो वो गलती बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, बाकी एग्जाम वाले नहीं करते क्या? मेडिकल वाले भी करते हैं, लॉ वाले भी करते हैं, सीए वाले भी करते हैं। हर एग्जाम 2 बार करो, वाई सो बायस्ड? खाली इंजीनियर बने गलती करने के लिए? सर दैट इंडिया का लॉजिक इज सेकंड फ्लॉड। टफेस्ट, हाँ, सर इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है। अबे सेकंड टफेस्ट एग्जाम है? कोई टफेस्ट एग्जाम नहीं है। स्टेटिस्टिक्स पे मत जाओ, लोग भर देते हैं क्यों? बाय डिफॉल्ट मैथ्स लिया है तो जेई देनी है, बस ये लॉजिक है। एडमिशन तो नहीं लेंगे, एडमिशन लेने का बूता भी नहीं है, क्लियर नहीं कर पाएंगे। वो टफेस्ट इस सेंस में है नंबर ऑफ क्वालिफाइड, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स क्वालिफाई। जहाँ पे चॉइस होती है कि हमें ही करना है कैट से एमबीए, वहां पे वही लोग भरते हैं जिन्होंने कुछ कुछ थोड़ा बहुत इनपुट डाला है। यहाँ तो बस भर दो, देख लेते हैं। दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड एज टफेस्ट, वरना वो घंटे टफेस्ट एग्जाम है। आपको मैं 10th का बोर्ड का एग्जाम दिखाऊं, जापान का, रशिया का, वो हमारे यहाँ के 10th के बोर्ड से कम 100 टाइम्स टफेस्ट, 100 टाइम्स, जिसको हम यहाँ सर ओलंपियाड चाइना में का भी। वो गुआको एग्जाम होता है, सबसे टफेस्ट है वर्ल्ड में। हाँ बेटा, सर चाइना में होता है गुआको, वो वर्ल्ड का टफेस्ट है। हाँ बता रहे हो सर तुम्हारा उसमें टफेस्ट है। सब 1 करोड़ लोग बैठते हैं एक बार में।
समस्या वही है ना, स्टेटिस्टिक्स इज डिसेप्टिव। उस पे मत जाया करो कि 1 करोड़ लोग बैठ रहे हैं तो इतने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं इसलिए टफेस्ट हो गया। अरे उसमें पढ़ कितने रहे भाई, पढ़ कितने रहे उसमें? 15,000 लोगों ने भर दिया, 50,000 लोग भी नहीं पढ़ते जेई के लिए कि हाँ जेई हमें देना है, देख लेंगे। दैट्स द माइंडसेट। एक बार बोर्ड क्लियर हो फिर अगर टाइम बचेगा तो कुछ कुछ क्रैश कोर्स कहीं ज्वाइन कर लेंगे, होता है तो ठीक है, नहीं जय माता दी, भगवान कहीं ना कहीं तो है ही हमारे लिए सीट। दैट इज द माइंडसेट, दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी एप्लीकेंट्स। और वो इस एग्जाम को स्टेटिस्टिकली डिफिकल्ट बनाते हैं। इतने लोग बैठेंगे, इतने खाली पास होंगे, फिर तो अपना चांस नहीं है, छोड़ दो। अंडरस्टूड? वो जो टफेस्ट वाला डेफिनेशन है वो डेफिनेशन गलत है वहां पे। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वर्सेस नंबर ऑफ सीट्स। डिफिकल्टी वाइज से बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है इंडिया में भी। बट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होते हैं इसलिए सक्सेस रेशियो ज्यादा होता है, परसेंटेज सिलेक्शन। समझ गया ना? ये देख के ये सोच के डरना नहीं कि इतने लोग बैठेंगे उसमें पास हो जाए, तो यार पढ़ ही नहीं रहे तुम लोग। कोटा में कितने 40-50 हजार लोग, 50,000 लोग थे जब आई वॉज इन कोटा। अभी तो बहुत होंगे वहां पे दोज हु प्रिपेयर। उसमें मेरी ऑल ओवर कोटा टॉप 20, कभी टॉप 7, कभी टॉप 17 ऐसे रैंक आती थी। और पढ़ने वाले नहीं, सब घूमने वाले थे वहां पे, दिन भर वीडियो गेम, कभी ये कभी वो। तो इट इज नॉट अ स्टेटिस्टिकली करेक्ट डेटा कि इतने लोग बैठते हैं तो उसमें इतने अपियर होते हैं। उतने सिर्फ फॉर्म फिल करते हैं, नंबर बढ़ाते हैं, एवरेज कम करते हैं, लोगों को डराते हैं, परसेंटाइल बनाने के लिए होते हैं वो, या आप इतने लाख लोगों से आगे। जेई में देखो कितने भी नंबर आए, 300 में 100 नंबर आ रहे हैं, फिर परसेंटाइल इज 70, 70% लोगों से आप आगे, जबकि नंबर आपके 30% आ रहा है। राइट? सो वो जो डेटा है ना वो बड़ा डिसेप्टिव है, उसके पीछे मत पड़ा करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रॉड इज वीवी। अब पोटेंशियल डिफरेंस का एक और फॉर्मूला हमें पता है, V इज इक्वल टू E इंटू आर या E इंटू डी। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होगा या ईएमएफ डेवलप होगा, उसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ईएमएफ डेवलप्ड इन द रॉड। सीरियस लोग जो है एग्जाम में पढ़ने के लिए वो मुश्किल से 0.0001% है ऑफ द होल एप्लीकेंट, यानी 15 लाख में 15,000 जो सीरियसली पढ़ते हैं। सीरियसली मतलब जिनको जेई एडवांस में कुछ सीट चाहिए, बाकी लोग ट्राई करते हैं, उनका प्लान बी कुछ और होता है, मतलब प्लान ए कुछ और होता है, प्लान बी इज जेई। होएगा तो ठीक है सर, नहीं तो कहीं से कर लेंगे, फिर बाहर जाएंगे। समझ गए? यस सर। दैट्स द प्लान नाउअडेज। सर फॉर्म तो भर देंगे, पेपर भी देंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बाहर कहीं चले जाएंगे, फिर बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। तो वो दैट इज नॉट द नंबर टू बी काउंटेड इन द कंपटीशन। सीरियस कंपटीशन मैक्सिमम ऑल ओवर इंडिया में 50,000 लोगों के बीच में है, 50,000 जो पढ़ रहे हैं, बाकी तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। EMF इंड्यूस इज BVL, हमने यहाँ से भी कैलकुलेट किया था, ये किसी का दूसरा एक्सप्लेनेशन है। सो कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना था कि जब भी कोई रॉड मूव करेगी, मूविंग रॉड, कंडक्टिंग रॉड, इट हैज टू बी मेटलिक रॉड, कंडक्टिंग रॉड, मैग्नेटिक फील्ड में उसके अंदर EMF आ गया, उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन अ सर्किट क्लोज लूप, वो उसके अंदर सर्किट में करंट इंड्यूस कर देगी एंड करंट विल बी E by R, EMF induced by R. Direction of EMF is always from negative to positive, क्योंकि किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है सेल में, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो इतना वाला पार्ट जो है इसको हम अलग से समझेंगे, इसके लिए एक पूरी अलग से थ्योरी करेंगे, मे बी नेक्स्ट क्लास, अगर आज टाइम नहीं बचता है। इमोशनल EMF। अभी वापस इस सर्किट पे आ जाते हैं जो सर्किट में थे।
ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम चेक करते हैं, कौन सा वाला हाई है कौन सा वाला लो है, और साथ साथ कैसे हम उसको डिसाइड करेंगे दैट व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द टर्मिनल ऑफ द पोटेंशियल सर्किट के अंदर बिकॉज ऑफ दिस मूविंग रॉड। तो ये मूविंग रॉड एक बैटरी बन गई इन शॉर्ट, दिस मूविंग रॉड इज बिहेविंग लाइक अ बैटरी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ होगा और निगेटिव वाला नीचे की तरफ, और इस बैटरी का पोटेंशियल यानी ईएमएफ है बीवीएफ, राइट। अब यहां लेकिन एक और समस्या आ जाएगी, क्या? रॉड के अंदर करंट आई, रॉड के अंदर करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, सो एवरी करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स, जो कि लेंज लॉ के हिसाब से भी होना चाहिए। अगर हम मैग्नेट इस रॉड को राइट साइड में मूव कर रहे हैं एंड दैट इज द सोर्स ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इंड्यूस करंट उसको अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, देयर शुड बी अ अपोजिंग फोर्स व्हिच इज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। सो जैसे इस रॉड में करंट इंड्यूस होगी, बिकॉज ऑफ दैट करंट अ फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो कि लेंज लॉ को भी सपोर्ट करे। ये इंड्यूस ईएमएफ है। फ्रॉम दिस इंड्यूस ईएमएफ वी कैन फाइंड आउट द करंट इन रॉड PQ. I will be equal to E by R. E is equal to BLV by R. This is the current induced. इस करंट की वजह से एक फोर्स भी लगेगा। एवरी करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। इस रॉड पे वो फोर्स किधर है? व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स? लेफ्ट हैंड रूल फिर से लगाओ, BIL FBI। वायर में करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन में लेफ्ट। फोर्स ऑन दिस वायर, वायर में करंट कहां से आई? ईएमएफ है, क्लोज लूप है, करंट आ जाएगी। करंट कैरिंग वायर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर फोर्स लगता है BIL sin थीटा, B अंदर I ऊपर, फोर्सेस टुवर्ड्स लेफ्ट। सो ऑन this rod there will be a magnetic force in opposite direction. So there will be a force, magnetic force on rod PQ. BI into L. And it is towards left क्योंकि रॉड जा रही थी राइट में, अगर रॉड लेफ्ट में जाएगी तो ये अपोजिट होगा उसके। इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही अगर हमने सपोज कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं दी या बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, ड्यू टू दिस फोर्स ओनली रॉड की वेलोसिटी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर हमें इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो हमें इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना कि मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया। So the force applied by magnetic field is B square L square V by R. There will be a same amount of external force required in opposite direction. External force required to move rod with constant velocity. F external will be equal to magnetic force, which will be equal to B square L square V by R. ये फोर्स होगा राइट साइड में इन दिस डायग्राम और अपोजिट टू दी फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स था मोशन के अपोजिट, सो ये फोर्स हमें उधर लगाना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में रॉड मूव। To continue this rod with constant velocity and external magnetic field, we have to apply B square L square V by R force towards the right side.
तो इतना भी क्वेश्चन आता है कि रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए कितना फोर्स लगाना है और किस डायरेक्शन में। अब अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो रॉड की काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज होगा नहीं, देन द इंड्यूस्ड करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कमिंग बिकॉज ऑफ वर्क डन। लेंज लॉ का लॉजिक था, या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस, और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया हमने उसका वर्क डन ही यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज होगा। सो पावर डेवलप्ड, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, पावर इज वर्क डन इन यूनिट टाइम ओनली। एक्सटर्नल फोर्स ने यूनिट टाइम में कितना पावर डिलीवर किया है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक्सटर्नल फोर्स के लिए पावर का फॉर्मूला होता है F इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर इंटू वी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। ये एक्सटर्नल फोर्स ने यूनिट टाइम में इतना पावर दिया है, यानी इतना पावर, इतना वर्क किया है ऑन दिस रॉड। बिकॉज ऑफ दिस वर्क डन ओनली देयर इज एन EMF induced, there is an electrical energy produced in the loop. Electrical energy, electrical power developed in this circuit electrical power developed in the rod is equal to I square times R. I is equal to BLV by R. I is equal to BLV by R. That is equal to B square L square B square by R, दोनों इक्वल है, यानी जितना एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है उतना ही इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस हो रहा है, विच इज प्रूविंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप होगी दैट इज जस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू द power delivered by the external agent or external force. Correct? Moving rod, conducting rod when moves in perpendicular magnetic field develops an EMF across its terminal which is equal to BLV. अब लेकिन ये जो BLV इसमें भी एक कंडीशन छुपी है, क्या? मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए अंदर, वायर होना चाहिए प्लेन में, और वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर। वेलोसिटी अगर आई में है, लेंथ वाई में, आई कैप जे कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड इज के कैप। ये फॉर्मूला जो BLV था मोशनल EMF का, वो अब तभी यूज कर पाएंगे जब ऑल द थ्री वेक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, all three are perpendicular to each other, right? If all the three vectors are perpendicular to each other, only then EMF induced का फॉर्मूला होगा BLV, और मोशनल EMF is induced in the rod. There is nothing with the wire frame बार कुछ भी लगाए हम या कुछ भी नहीं लगाए, in both the case rod के across जो terminal potential difference develop होगा that is called motional EMF, और इसको हम अलग से भी स्टडी कर सकते हैं। any kind of conducting rod when rod is moved, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालें ना मोशनल EMF। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव हो गया, लेंज लॉ प्रूव हो गया। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द प्रूफ इज दिस, हमने सर्किट में रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया, एनर्जी नहीं होने दी चेंज। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट में है वो एक्सटर्नल फोर्स की वर्क डन की वजह से, एंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन यूनिट टाइम इज सेम एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन यूनिट टाइम। नेक्स्ट इज मोशनल EMF। हेडिंग डाले ना मोशनल EMF, थोड़ा सा बस देख लेते हैं, रेस्ट वी विल डू इन दी next class on Thursday.
इससे पहले वो भी इमोशनल करता है कि वो एग्जांपल से हम समझ रहे थे। अभी इमोशनल ईएमएफ वो एक क्लोज लूप था। नाउ उसी से हमने कंक्लूजन निकाला है कि कोई भी रॉड जब मूव करेगी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, इट विल हैव एन ईएमएफ इंड्यूस्ड। सो इमोशनल ईएमएफ लिखना, व्हेन अ कंडक्टिंग रॉड moves perpendicular to its length as well as perpendicular to magnetic field. When a conducting rod is moved perpendicular to its length as well as velocity, perpendicular to its length as well as perpendicular to magnetic field, a potential difference is developed. A potential difference is developed across its terminal called as motional EMF, given by E induces BVL, and when a conducting rod is moved perpendicular to its length as well as perpendicular to magnetic field, potential difference is developed across its terminal. Right. So क्या लिख रहे थे? An EMF is induced across terminal given by E in is equal to BVL, और and the direction is given by Fleming's right hand rule, जो हम next class में करेंगे क्योंकि शायद मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली। Fleming's right hand rule next class means Friday's class. Right? Okay. Fleming's right hand rule से हम डायरेक्शन निकालते हैं, that we will do in next class. हाँ, वो लेफ्ट किया था ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड था फोर्स के लिए, राइट हैंड रूल होता है इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के लिए, that we will do in Friday's class. Okay, thank you.